Hello students, today we are going to learn our fifth chapter named as Gunvati Kanya. So at first we should go through its background part. So let's learn. Here you can see one word, poet Dandi. Okay. Dandi is the very well known poet like Kalidas. I think you have heard the name of Kalidas. So poet Dandi is the poet of this story's background part. Okay, that means this story is taken from Mahakavi Dandi, poet Dandi's work. Okay, so let's learn. Poet Dandi is well known as prose writer in Sanskrit literature. Yes, he is called poet as well as prose writer. Okay, he has written a prose work named Dash Kumar Charitam. Its theme is imaginative. Yes, totally imaginative theme. Dash Kumar Charitam is the work, and it is also the background part of our story. 10 Kumaras. See here the name Dash Kumar means 10 Kumaras. As it was decided, start traveling in 10 different directions. Okay, it is a short description of this work. So in this work, 10 Kumaras who start traveling in 10 different directions. During the journey, whatever every Kumara has experienced is described in 10 uchvas. Here in Sanskrit literature, uchvas means sections. Okay, so this work has some sections, and in the 6 sections, 6 uchvas, Mantragupt. Here is the Kumar named Mantragupt, and he describes his own experiences of journey. At this juncture, he narrates the story of Shakti Kumar. Okay. Here you have to remember that Shakti Kumar is the main hero or main character of our story. Okay. So the story of Shakti Kumar is coming in the 6th section of this work. So you have to remember. Yes, the question also can be asked in your examination from this background part, that in which section or of which poet is this work. Okay, then we have to write poet Dandi. Or it can be also asked that from which work the story Gunvati Kanya is taken. At that time you have to write Dash Kumar Charitam. And from which section? From 6th section. This story has been edited and presented here in brief. So it is additional story. Man and woman are two wheels. Yes, from this paragraph, the main theme of this story is starting. Man and woman are two wheels of a chariot in the form of household life. Okay? Household life का जो chariot है, यानी कि गृह संसार जिसको हम कहते हैं, गृहस्थी कहते हैं, गृह संसार का जो रथ है, उसके दो पहिए कौन होते हैं? मैन एंड वुमन. Okay? As it is essential to have both the wheels of a chariot similar in shape and size. Obviously, कोई भी रथ हो या कोई भी व्हीकल हो, अगर उसके दो पहिए शेप एंड साइज में सही नहीं है या फिर छोटे बड़े हैं, तो वो जो व्हीकल या जो रथ है वो इजीली चला सकते नहीं हैं. तो सेम हियर इन हाउस होल्ड लाइफ. हाउस होल्ड लाइफ का जो चैरियट है उसमें मैन और वुमन के यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों क्या होते हैं? तो हाउस होल्ड लाइफ जो है, गृहस्थ संसार जो है, गृहस्थी जो है, उसके रथ के दो पहिए के समान होते हैं. इसलिए दोनों के जो विचार है, थिंकिंग है, बिलीफ है, के वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, ये बहुत काम की चीज़ है. अदरवाइज क्या होगा? तो अदरवाइज उनका जो गृह संसार है वो इजीली चलेगा नहीं. सिमिलरली मैन एंड वुमन वर्किंग as wheels of household chariot should also be similar in thought and virtues. Obviously, if one is virtuous and other is not, then it will be not easy to move this chariot. Okay, Shakti Kumar, the hero of the story, is endowed with good qualities. Means Shakti Kumar has many good qualities, and that's why he wants also to marry a girl who is virtuous. Okay, having good qualities similar to him. He has made a plan to find out a qualitative girl of his own choice. Here qualitative means virtuous girl, okay, of his own choice. So as per his plan, a girl
Who can prepare and feed various food items from only one prastha paddy? Here rice grain. Okay, but of what which measurement? Here 2 kilograms. prastha means 2 kilograms. ये जो प्रस्थ है वो थोड़ा पुराना मेजरमेंट है, ठीक है, जो यूज़ किया गया, और उसका मेजरमेंट अबाउट 2 किलोग्राम जितना होता है। तो यहाँ पे जो पैडी की बात है मीन्स वो राइस ग्रेन की बात है कि 2 किलोग्राम जितने यानी कि 1 प्रस्थ जितने राइस ग्रेन है उसमें से जो लड़की बहुत सारी फूड आइटम बना के खिला सकती है वैसी वर्चुअस गर्ल जो है वो शक्ति कुमार को चाहिए। ओके, फॉर हिम शी इज वर्चुअस। ओके, आफ्टर फाइंडिंग सच ए गर्ल he would put a proposal of marriage and if she agrees he will marry her. Okay? तो ऐसी लड़की ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट शक्ति कुमार को वैसी लड़की चाहिए कि जो वर्चुअस हो और जो फूड आइटम्स बनाने में इतना ही नहीं सिर्फ बनाने में बट विथ लव या तो विथ इंटेलेक्ट बना के उसको खिलाने के लिए जो गर्ल सक्षम हो, जो गर्ल ये कर सकते हैं, ऐसी गर्ल के सामने वो मैरिज पहले अपना प्लान जो है वो रखेगा। अगर वो उस प्लान में वो लड़की सक्सेसफुल होती है वो गर्ल तो उसके सामने मैरिज की प्रपोजल रखेगा, और अगर वो एग्री होती है तो उसके साथ वो मैरिज करेगा। ओके, इट वॉज द होल प्लान ऑफ शक्ति कुमार। यस, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन इन शॉर्ट नोट दैट शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्टिंग गर्ल। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन जो आता है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो इस यूनिट में से निकलता है, इसलिए खास ध्यान रखना। आपको इतना याद रखना है खास कि शक्ति कुमार की प्लानिंग जो थी वो क्या थी। ओके, फिर उसमें आगे पीछे अपना थोड़ा जो यूनिट में से जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करके मैं शॉर्ट नोट फॉर्म करनी है। लास्ट पैराग्राफ, शक्ति कुमार वॉज मूविंग इन डिफरेंट कंट्रीज इन सर्च ऑफ अ वर्चुअस गर्ल, finds one girl living in Kanchinagar. Okay, here Shakti Kumar reaches at Kanchinagar and there he sees a girl who was sitting on the river bank of Kaveri near a well. Okay, आगे आएगा यूनिट में कि वो एक वेल के पास बैठी, कुएं के पास बैठी हुई है, और शक्ति कुमार जो है उसकी ब्यूटी से, जो लेस ऑर्नामेंट थी, वो गर्ल जो है वो उसने लेस ऑर्नामेंट पहने होते हैं बट उसकी ब्यूटी भी जो है वो अट्रैक्ट करती है शक्ति कुमार को। So he thinks to imply his plan. ठीक है, तो सोचता है कि उसको अपना प्लान जो है वो इस गर्ल के पास रखे, अगर एग्री होती है तो वो प्लान को सक्सेसफुल बना सकती है। Then the girl using her extraordinary intellect prepares various food items and pleases Shakti Kumar by feeding him those items with love. So at last that girl, okay, was sitting on the bank of river Kaveri. That girl succeeds in the test. Here, thus the girl succeeds in the test. Okay, she becomes successful. Shakti Kumar puts a proposal of marriage and marries her after her consent, means after her agreement. The moral of the story is that in spite of want of things, a good or virtuous person with excellent skill can get desired happiness. Obviously, okay. यहाँ पर देखो एक वो भी क्लियर मोरल किया हुआ है कि जनरली क्या होता है, तब मैरिज की जब बात आती है तब पर्सन जो होते हैं यानी कि बॉय या तो गर्ल वो एट फर्स्ट किसको सबसे पहली पसंदगी अपनी जो है वो उतारते हैं किस पे, तो ब्यूटी पे। बट यहाँ पर दिखाया गया है कि सिर्फ ब्यूटी नहीं, सिर्फ थिंग्स नहीं, ठीक है, लेकिन वर्चुअस अगर है कोई तो उसके अंदर जो भी वर्च्यू है वो वर्च्यू की वजह से पर्सन जो है कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हैप्पीनेस जो वो डिज़ायर कर सकता है। ये मेन मॉरल है स्टोरी में से। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हियर वी विल डू इंग्लिश ट्रांसलेशन विद दिस संस्कृत लाइन्स। कांचीनगरे शक्ति कुमारो नाम एकः श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। मीन्स इन कांचीनगर शक्ति कुमार श्रेष्ठी पुत्र मीन्स सन ऑफ मर्चेंट। पुत्र मीन्स सन एंड श्रेष्ठी मीन्स यहाँ पर मर्चेंट। So, in Kanchinagar, son of merchant lives here. Prativasati means used to live or lives named शक्ति कुमार। शक्ति कुमार नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र यानी कि मर्चेंट का सन कांची नगर में रहता है। ओके, सी हियर द स्टोरी इज इन
both tenses mean simple present and also in the past. Some sentences are of the past sentences, past tense. स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः. Okay, यदा means when, स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे, here number is presented. See, द्वाविंशति means 22. Okay, and pravishta means entering. So when he enters 22 year of his life, स्वकीयस्य जीवन means his own life. Okay, tada means at that time, चिंताम आपन्न, here one sandhi is here, चिंताम plus आपन्न. Okay, means he falls in anxiety. Okay, or he worries. So let's do one time again. स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्ट means when, स means he. Okay, when he enter his own life 22 years या फिर 22 years of his life, जब वो अपने जीवन के 22 years पे एंटर करता है तब चिंता आपन, चिंता में पड़ जाता है, मीन्स ही बिकम्स वरीड. ओके, क्या उसको चिंता है? सी हियर, ये डेस्क के बाद जो सेंटेंस लिखा है वो सोचता है. नास्ति दार विहीनानाम अनुरूप गुणदाराणाम च सुखम. ओके, ये टू टाइप ऑफ पर्सन में आर मेंशन्ड. एक तो जिसको सबसे पहले इसका मीनिंग समझे, दार मीन्स वाइफ. ओके, दारा, यस प्लीज रिमेंबर, इट कैन बी आस्क्ड इन सिनोनिम वर्ड that dara, bharya, this word are synonym in English, wife. Okay, nasti means no, here negative is represented, so no. कि जो दारा विहीनाम, यस विहीनाम का मीनिंग होता है विदाउट. ओके, अ पर्सन विदाउट वाइफ और अन अनुरूप गुण द्वारा. अगर वाइफ किसी की वाइफ नहीं है या तो फिर वाइफ है लेकिन कैसी है, अन अनुरूप गुण, मतलब कि वर्चुअस नहीं है. ठीक है, उसके गुण उसके अनुरूप नहीं है, मतलब वर्चुअस नहीं है. तो ऐसे लोग जो है वो नास्ति सुखम, यानी कि ऐसे लोगों को सुख मिलता नहीं है. ठीक है, तो क्या सीखेंगे हम इंग्लिश में, सॉरी इसका ट्रांसलेशन क्या सीखेंगे कि जो पर्सन जिसकी वाइफ नहीं है, दार विहीन है, मतलब कि बिना वाइफ का है, और जिसकी वाइफ है अगर लेकिन अन अनुरूप गुण की है, यानी कि जिसके अंदर अनुरूप गुण नहीं है, वर्चुअस गुण नहीं है, तो ऐसी जो वाइफ वाला पर्सन है वो कभी, यहाँ पर साथ में लेना है सुखम नास्ति, या तो नास्ति सुखम, यानी कि ऐसा पर्सन जो है वो कभी सुखी रह सकता नहीं है. ठीक है, अब पूरा जो सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि दोज who have no wife, इसका मीनिंग who have no wife, and those whose wife devoid of suitable virtues. ठीक है, devoid of means lack, खामी होना, lack of virtue. Okay, lack of suitable virtue, that person do not become happy, कभी सुखी रह सकते नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा कौन सोच रहा है, शक्ति कुमार. के तत् कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदेयम इति, यहाँ पर संधि लगोगी, विंदेयम प्लस इति, विंदेयम मीन्स पाना. ओके, तो फिर कैसे मैं गुणवती भार्या को, यानी कि ऐसी भार्या की जो गुणवती हो, वर्चुअस हो, ऐसी भार्या को मैं कैसे पा सकता हूँ. इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ. ओके, तत् मीन्स सो, कथम का मीनिंग हाउ, हाउ के साथ हम क्या ले लेंगे, कैन यहाँ पर. ठीक है, हाउ कैन आई गेट, विंदेयम मीन्स पाना, यानी कि गेट गुणवती भार्या मीन्स वर्चुअस वाइफ. सो हाउ कैन आई गेट वर्चुअस वाइफ. ओके, तो मैं ऐसी वाइफ कैसे पाऊंगा, ऐसे कौन चिंता करे, कौन सोच रहा है, तो शक्ति कुमार. ठीक है, यहाँ पर चिंता वर्ड जो, उसका मीनिंग ऐसा भी ले सकते हैं कि जब वो 22 ईयर्स में एंटर होता है तब उसको उसके वाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में चिंता होती है. और एक चिंतन का मीनिंग ये भी होता है सोचना. ठीक है, तो हम ये भी ले सकते हैं कि ही थॉट्स. ठीक है, ही थॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर ही बिकम्स वरीड भी ले सकते हैं. सेकंड पैराग्राफ, तत्व, तत्व मीन्स धैन,
स प्रभुतम विचार्य वस्त्रांते पिनद्दशाली दार ग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। के जब उसने ऐसा सोचा कि अगर वाइफ नहीं है या तो फिर वर्चुअस वाइफ नहीं मिलती है तो ऐसे पर्सन कभी हैप्पी रह सकते नहीं है, तो फिर मुझे गुणवती भार्या कैसे पानी, यानी कि गुणवती भार्या मीन्स वर्चुअस वाइफ कैसे पाऊँ। ऐसा सोचने के बाद वो थोड़े समय के बाद कहाँ पर, ठीक है, थोड़े समय के बाद वो अपने लिए वर्चुअस वाइफ ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। विविधान देशन यहाँ पर वर्ड आया, वेरियस कंट्रीज में वेरियस प्लेसेस पे वो अभ्रमत यानी कि घूमता है। देखो हियर अभ्रमत वर्ब, इट इज वर्ब बट इट रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस। ओके, खास ध्यान रखना। ये जो था इसमें हमने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस देखे जो ती वाले वर्ब थे ऑलमोस्ट, और अभ्रमत यहाँ पर जो वर्ब है वो पास्ट टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो तथा मीन्स देन, सो मीन्स ही, प्रभुतम विचार्य, प्रभुतम विचार्य मीन्स थिंकिंग डीपली, यहाँ पर प्रभुतम का मीन है डीपली, विचार्य मीन्स बाय थिंकिंग, थिंकिंग डीपली, ऐसा सोच के, गहरा सोच के वो क्या करता है। ही तो हमने यहाँ पे लिया, स मीन्स ही, अभ्रमत का मीनिंग वॉन्डर्ड, ठीक है, भ्रमण किया उसने, वो घूमा। ही वॉन्डर्ड एट विविधान देशान, वेरियस प्लेसेस, किसके साथ, विथ पिनद्दशाली, पिनद्दशाली मीन्स विथ पैडी। हमने ऊपर देखा यहाँ पर पैडी मीन्स 2 किलोग्राम जितना मेजरमेंट है, किसका मैंने आपको बताया था, राइस ग्रेन की बात है, ठीक है। तो अपना जो वस्त्र होता है उसके अंत पे, वस्त्रा अंत मीन्स वस्त्र के एक छोर पे, जिसको हम छेड़ो कहते हैं, एंड कहते हैं, वस्त्र के एंड पे उसने पिनद्दशाली यानी कि शाली बांध के, ठीक है, शाली मीन्स यहाँ पर पैडी, प्रस्थ, एक प्रस्थ पैडी बांध के उसने क्या किया, अलग अलग देशों में भ्रमण करना शुरू किया। किसके लिए, फॉर सर्चिंग अ वर्चुअस वाइफ। देन ही वॉन्डर्ड एट वेरियस प्लेसेस, ओके, फिर क्या आएगा, with paddy, here with paddy tied at the end of his garment, वस्त्र मीन्स गारमेंट, उसके वस्त्र के एंड पे पिनद्द मीन्स यहाँ पर बांध के, क्या बांध के, शाली यानी कि पैडी, पैडी बांध के, पैडी मीन्स 2 किलोग्राम जितने राइस ग्रेन्स ने पैडी बांध के वो दार ग्रहणाय का मीनिंग है फॉर गेटिंग वर्चुअस वाइफ। दार मीन्स वाइफ, ग्रहणाय मतलब ग्रहण करने के लिए यानी कि पाने के लिए, ठीक है, वर्चुअस वाइफ पाने के लिए वो विविध देश में घूमता है। एकदा स कावेरी तीर पत्तने समागता, समागता मीन्स केम यहाँ पर, रीचेस। सो व्हाट हैपेंड दैट वंस, एकदा मीन्स वंस, स मीन्स ही, हियर समागता मीन्स केम, CAME केम, कहाँ पर आया, टू अ सिटी ऑफ ऑन द बैंक रिवर ऑफ कावेरी, कावेरी तीर के, कावेरी तीर पत्तने मतलब कावेरी तीर पे आए हुए एक जगह पे, यानी कि हम क्या लेंगे, एक नगर में एक बार वो समागत यानी कि आया। अत्र मीन्स हियर, सह ही कूपे विरल भूषणाम कुमारीम एकाम अपश्यत, सी हियर संधि इज डिसजॉइंट, कुमारीम प्लस एकाम, एकाम मीन्स 1, कुमारी मीन्स अ गर्ल। विरल भूषणाम का, भूषण का मीनिंग होता है ऑर्नामेंट्स, यहाँ पर विरल का मीनिंग है वेरी लेस, ओके। सो हियर ही अपश्यत मीन्स देखा उसने यानी कि SAW, सो हियर ही सो 1 गर्ल विथ वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, कूप, कूप का मीनिंग होता है कुआ यानी कि WELL वेल, सो क्या लिखेंगे, एट द वेल या तो नियर द वेल, ठीक। यहाँ पर वो कावेरी के तीर पे एक नगर था, वहाँ पर आया, तो वहाँ पर उसने एक कुएं के पास एक बहुत कम गहने पहनी हुई एक कुमारी को उसने देखा। तस्या रूप संपदा अभिभूत, यहाँ पर संधि अलग हो रही है, रूप संपदा अभिभूत, सह अचिंतयत, सो चिंतयत नहीं लेकिन सह अचिंतयत, अचिंतयत मतलब चिंता करना ऐसा नहीं, अचिंतयत मीन्स उसने सोचा, के ही थॉट, या वो सोचता है। देखो कुमारी कैसी थी कि जिसने बहुत कम गहने पहने थे, ठीक है, लेकिन उसकी रूप संपदा मतलब कि उसकी ब्यूटी इतनी अच्छी थी तो इससे अट्रैक्ट हो गया, अभिभूत हो गया मीन्स अट्रैक्ट हो गया और उसने सोचा, तस्या मीन्स उसके रूप संपदा से अभिभूत होकर उसने सोचा, क्या सोचा, आकृष्टम में हृदयम अस्याम, आकृष्टम में हृदयम अस्याम, इसका मीनिंग क्या है, वो सोचता है कि माई माइंड इज अट्रैक्ट टू दिस गर्ल, आकृष्टम मीन्स मैं मीन्स मेरा माइंड जो है वो यहाँ पर आकृष्ट हो रहा है, हृदयम अस्याम मेरा हृदय जो है वो इसकी ओर आकृष्ट, इसका मतलब वो गर्ल की ओर आकृष्ट हो रहा है मतलब अट्रैक्ट हो रहा है,
तद एताम परीक्षा मीन्स तो फिर इसकी परीक्षा लेके विवाह प्रस्तावम कृत्वा मैरिज प्रपोजल करके उसके सामने रख के तस्याम सम्मतो अगर उसकी सम्मति है एग्री है तो उद्वहामी उद्वहाम मीन्स आई विल मैरी तो फिर मैं उसके साथ मैरिज करता हूँ। इंग्लिश क्या लेंगे इसका? सो यहाँ पर आए ना तद मीन्स सो टेस्टिंग हर ओके एताम परीक्षा टेस्टिंग हर विवाह प्रस्ताव कृत्वा एंड मेकिंग कृत्वा मीन्स मेकिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज फिर आई विल इसका मैं पहले लिया है उद्भव में आई विल मैरी हर लेकिन कैसे तस्याम सम्मतो इफ शी एग्रीज अगर उसकी सम्मति है तो मैं आई विल उद्भव मीन्स आई विल मैरी मैं उसके साथ मैरिज करूँगा। सताम निकषा संगत्य फिर वो उसके ताम मीन्स उसके निकट जाके निकषाम संगत्य का मीनिंग है उसके पास पहुँच के सविनयम मीन्स पोलाइटली ओके आह का मीनिंग है सेड उसने उसके पास जाके पोलाइटली कहा अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थेन अनेन संपन्न आहार माम भोजयितुम ठीक है क्या पूछा डायरेक्टली कि तुम्हारे पास ऐसा कौशल है ऐसी स्किल है कि जो एक ही शाली से एक प्रस्थशाली से यानी कि 2 किलोग्राम जितने राइस ग्रेन से ही मुझे संपन्न आहार भोजयितुम खिलाए ठीक है ऐसी तुम्हारे पास स्किल है कौशल है। इंग्लिश क्या लेंगे इसका? डू यू हैव देखो अस्ति है ना डू यू हैव कौशल मीन स्किल टू फीड मी संपन्नम आहारम माम भोजयितुम टू फीड मी विथ वेरियस फूड के संपन्नम आहारम वेरियस फूड और इसका मीनिंग है सम्चुअस फूड यानी कि संपन्न आहार से। प्रीपेयर्ड विथ किससे बना हुआ? प्रीपेयर्ड विथ दिस वन प्रस्थ पेड़ी एक प्रस्थ पेड़ी में से बने हुए संपन्न आहार को मुझे खिलाने में तुम कुशल हो यानी कि तुम्हारे पास स्किल है। ठीक है ऐसा किसने किसे पूछा? तो शक्ति कुमार ने उस गर्ल को पूछा। यहाँ पर उस गर्ल का नेम मेंशन नहीं हुआ है सो हमें एक शक्ति कुमार का एक का ही नाम इस स्टोरी में याद रखना है। ततः सा ओम इति उक्त्वा के प्रस्थमात्रम धन्यम आदाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचना अनुसारम कर्तुम प्रवृत्ता। सेंटेंस थोड़ा टफ है समझना अच्छे से संधि अलग हो रही देखो ओम इति उक्त्वा प्रस्थमात्रम यहाँ पर संधि अलग हो रही धान्यम आदाय याचना अनुसारम ये 3 वर्ड संधि वाले एक याचना अनुसारम धान्यम आदाय और ओम इति ओके। ततः मीन्स धैन दूसरी बार यहाँ पर भी आया था यहाँ पर भी है। उसके बाद सेइंग यस ओम इति जब वो उक्तवा मीन्स सेइंग बोल के जब वो ओम यानी कि हाँ ऐसा बोलती है तब क्या करता है प्रस्थम मात्रम धान्यम आदाय ठीक है यानी कि आदाय मीन्स टेक लेना तब वो धान्य जो है इसके पास जो प्रस्थम मात्र यानी कि इसके पास जो पेड़ी जितना 1 पेड़ी जितना धान्य था राइस ग्रेन थे उसको लेके श्रेष्ठी पुत्र से याचना अनुसार श्रेष्ठी पुत्र की जो याचना थी यानी कि उसका जो प्लान था श्रेष्ठी पुत्र का शक्ति कुमार ने जो उसके सामने मांग की थी उसके अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता उसके अनुसार करने के लिए वो रेडी हो गई। प्रवृत्ता मीन्स वो रेडी हो गई। ठीक है तो पूरी लाइन समझते हैं इंग्लिश में। सा ओम इति उक्त्वा देन सेइंग यहाँ पर सेइंग यस टेकिंग ओनली ये आधा वर्ड का मीनिंग टेकिंग मात्र मीन्स ओनली 1 प्रस्थ पेड़ी ठीक है धान्य का मीनिंग लेना है इसके प्रस्थ के साथ 1 प्रस्थ जितना धान्य 1 प्रस्थ पेड़ी कर्तुम प्रवृत्ता शी प्रोसीड क्या प्रवृत्त करने लगी क्या करने के लिए रेडी हो गई टू डू एज ही हैड आस्क्ड हर के ही मीन्स यहाँ पे शक्ति कुमार ने जैसे श्रेष्ठ पुत्र मीन्स यहाँ पर जैसे शक्ति कुमार ने याचना की थी जैसा आस्क किया था उसको तो उसके उसने जो पूछा था जो कहा था उसकी याचना के अनुसार करने के लिए वो बिकेम रेडी या तो प्रोसीडेड के वो प्रोसीड हो गई।